Students, welcome to my YouTube channel Maths with Harpal Singh. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਵੈਕਟਰਸ। ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਜਾਂ ਏ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਐਨ ਕੈਪ। ਏ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਐਨ ਕੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਏ, ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਬੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਕੈਪ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਬੋਥ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ, ਵੈਕਟਰ ਏ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ ਬੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਬੋਥ, ਐਨ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਏ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਏ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਧਰ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਧਰ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ whose adjacent sides are A and B, whose adjacent sides, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A cross B is what? A cross B magnitude is what? Area of parallelogram whose adjacent sides are A and B। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ? ਹਾਫ ਆਫ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀ, ਹਾਫ ਆਫ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ A1 I ਕੈਪ ਪਲਸ A2 J ਕੈਪ ਪਲਸ A3 K ਕੈਪ, ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ B1 I ਕੈਪ ਪਲਸ B2 J ਕੈਪ plus B3 K cap, then A cross B is equals to determinant of I J K। ਜੇ A cross B ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ I J K ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ A1 A2 A3 B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3।
ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ तो साडा A क्रॉस B ਦਾ आंसर आ जाएगा। ਹੁਣ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ स्पेस की गल करते हैं इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आई कैप इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज़ अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज़ अलोंग जेड एक्सिस। फिर क्रॉस प्रोडक्ट दे विच आई डॉट आई क्रॉस आई ਜਾਂ जे क्रॉस जे ਜਾਂ के क्रॉस के, इन्हां दा आंसर की आएगा। वेखो एक मैं करवा देना आई क्रॉस आई जदों करांगे, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वैक्टर है साडे कोल ते यूनिट वैक्टर दा मैगनीट्यूड हमेशा 1 हुंदा। इहदा मतलब 1 इंटू 1 साइन आई दा अपने आप नाल 0 एंगल बनया साइन 0 ते इहदे परपेंडिकुलर वैक्टर जे आपां वेख लवांगे। ठीक है, आई क्रॉस आई दे परपेंडिकुलर जे भी लिखा जा सकता, के भी लिखा जा सकता, पर साइन 0 होने करके आंसर क्या आ जाना 0। इहदा मतलब आई क्रॉस आई होवे जां जे क्रॉस जे होवे जां के क्रॉस के, इन्हां दे आंसर की आउणगे 0। आई क्रॉस जे, इस तो नैक्सट आपां करना 0 दे उपर वैक्टर पावांगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जिहड़ा है वो वैक्टर फॉर्म दे विच आउंदा है ते डॉट प्रोडक्ट का आंसर जिहड़ा है स्केलर फॉर्म दे विच आएगा। हाँ जी, हुण आपां वेखना है आई क्रॉस जे, इहदा आंसर क्या आएगा। क्योंकि आई क्रॉस जे करांगे तो इन्हां दे परपेंडिकुलर वैक्टर आ जाना के, इत्थे लिखांगे 1 इंटू 1 साइन आई ते जे दे विच दा एंगल 90 डिग्री का बनेगा ते नाल आ जाना के कैप, साइन 90 इज़ 1, दा मतलब आई क्रॉस जे इज़ इक्वल्स टू के कैप। आई क्रॉस जे इज़ इक्वल्स टू के कैप। फिर इदां ही जे इनू सीखना होवे तां इधर 3 वैक्टर बना लैने, आई जे ते के लिख लो। जे आई क्रॉस जे आ तो आंसर आ जाना के कैप, जे क्रॉस के आ तो आंसर आ जाएगा आई कैप, जे के क्रॉस आई आ तो आंसर आ जाना जे कैप। पर जे इक्को सर्कल दे विच जे आपां क्लॉकवाइज चलते हैं, इक्को डायरैक्शन दे विच मूवमेंट हुंदी आ, तां फिर साडे कोल आई क्रॉस जे दा आंसर के, जे क्रॉस के दा आंसर आई। पर जे इस तो ओपोजिट कर दईए के क्रॉस जे, देखो एरो उपर नूं ही पर आपां उल्ट चल गए तो फिर इहदा आंसर आएगा माइनस ऑफ आई, माइनस ऑफ आई। इदां ही जे क्रॉस आई इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एंड आई क्रॉस के इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे। एक क्रॉस प्रोडक्ट दियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने ये चंगे तरीके नाल याद कर लैणियां। एक गल होर, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, इनू नोट पा के लिख लेना। मतलब जिहड़ी क्रॉस प्रोडक्ट हुंदी है, इट डज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नू होल्ड नहीं करेगी कार्टीशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। हुण इहदे नाल दे आपां जिहड़े क्वेश्चनस करने आ यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि बड़ा आपां ब्रीफ दे विच पढ़दे पए आ, तां इहदे क्वेश्चनस किदां दे होणगे। मेरे कोल इत्थे क्वेश्चन ने। फोर्थ सम आ जिहड़ा मैं तुहानूं श्योर शॉर्ट तो कराउंदा पिया सी, जां जिवें
एग्जाम दे विच क्वेश्चन जिद्दां दे आउंदे आ, ए वैक्टर इज़ इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वैक्टर इज़ इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हुण फाइंड करन नूं कहा गया है, फाइंड अ यूनिट वैक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वैक्टर, फाइंड अ यूनिट वैक्टर आपां एक फाइंड करना विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वैक्टर, जिहड़ा इन्हां दोनों दे परपेंडिकुलर होवे। ते जे आपां सिंपल पढ़िया ही एन कैप की ही परपेंडिकुलर टू ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, जदों ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं आपां, इहदा मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी इन्हां वैक्टर्स दे परपेंडिकुलर जे वैक्टर कढ़ना है आपां, पहलां तां आपां ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर फाइंड आउट करांगे। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर किहदे कोल आएगा, इन्हां नूं ऐड कर दो, आई प्लस आई इज़ 2 आई कैप, जे प्लस 2 जे 3 जे कैप 4 के कैप। ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज़ इक्वल्स टू आई माइनस आई 0, आई माइनस 2 जे इज़ माइनस ऑफ जे, के माइनस 3 के माइनस 2 के। लेट एन कैप बी unit vector which is perpendicular to both a vector plus b vector and a vector minus b vector। तो फिर ये होएगा किहदे इक्वल, therefore n cap is equals to a vector plus b vector क्रॉस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर अपॉन ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर मैगनीट्यूड। किवें आया साडे कोल, इत्थे मैं ए क्रॉस बी जिवें सिंपल आपां फाइंड कीता सी, तो की आ गया है ए बी साइन थीटा, नाल आ जांदा एन कैप। ये एन कैप फाइंड आपां करते पे हैं, ए क्रॉस बी का जे मैगनीट्यूड फाइंड करो वो की आ जाएगा ए बी साइन थीटा, सिंपल मैगनीट्यूड इनी टर्म कैप तो बिना। हुण इहदी जगह ते मैं ए क्रॉस बी का मैगनीट्यूड लिख सकदा, तो फिर एन कैप की जे वैल्यू कढ़ी जाए वो की आ जाती ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैगनीट्यूड। इत्थे ए एन कैप परपेंडिकुलर सी ए ते बी वैक्टर दे, पर आपां की करना एन कैप फाइंड करना विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हुण ए प्लस बी वैक्टर क्रॉस ए माइनस बी वैक्टर ये आपां फाइंड करना, तो ये लिए आई जे एंड के ये लिख देवांगे डिटरमीनेंट दे विच। इत्थे ए प्लस बी दे कंपोनेंट लिखने 2 3 4, ए माइनस बी दे लिखांगे 0 -1 -2, आई बाहर रखा तो एक कितना आ जाना -6 + 4, फिर माइनस जे कैप -4 -0 प्लस के कैप -2 -0। ये डिटरमीनेंट जिवें भी आपां खोलते होंदे ही डिटरमीनेंट चैप्टर दे विच सिक्ख्या, इदां डिटरमीनेंट नूं खोलना। ये कितना आ जाना साडे कोल -2 आई कैप +4 जे कैप -2 के कैप। तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, जे इहदा मैगनीट्यूड फाइंड करना है तो मैगनीट्यूड फाइंड करने का तरीका की आई जे के इन्हां दे कंपोनेंट दे स्क्वेयर करके ऐड कर दो। -2 स्क्वेयर इज़ +4, 4 स्क्वेयर 16 +4 24, 24 6
4 ज़ा यानी कि 2√6 वी कैन राइट 2√6। सो देयरफॉर n cap इज़ वॉट n cap यूनिट वैक्टर आपां ये सपोज किया है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ a वैक्टर प्लस b वैक्टर एंड a वैक्टर माइनस b वैक्टर। ये फाइंड आउट करना a क्रॉस b, a प्लस b क्रॉस a माइनस b। इसका आंसर क्या है -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप अपॉन च क्या आ जाना 2√6। इनू कल्ले कल्ले दे नाल डिवाइड कर दो, 2 दे नाल 2 कैंसल होएगा तो -1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप -1/√6 के कैप। ये साडा आंसर आ जाना। सो आपां एक क्रॉस प्रोडक्ट दे इदां दे एग्जाम दे विच क्वेश्चन वेखण नूं मिल सकते हैं। कोई भी डाउट होवे किसी तरह का, जे किसी बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम आउंदी होवे तां फिर मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर जिहड़ा है वो हमेशा यूट्यूब के चैनल के उपर पिया है। जदों भी मैनू फ़ोन करना होवे किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो वो किया जा सकता। नैक्सट इस तो नैक्सट एक होर सम लवांगे। यूजिंग वैक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राईएंगल। वैक्टर्स नू यूज़ करके आपां एरिया फाइंड करना हुज वर्टिसिस। इदा ट्राईएंगल दे वर्टिसिस दिते ने A B C। A is 1 1 1, B 1 2 3 and C 2 3 1। हुण इस सम नूं जदों आपां करना है तो मैं तुहानूं दस्सिया स्टार्टिंग दे विच कि जेकर सानू दो एडजेसेंट वैक्टर किसी भी ट्रायंगल दे या दो एडजेसेंट साइड्स मिल जान, मतलब जे ये दो वैक्टर मिल जान। हुण इह जरूरी नहीं है कि इत्थे A B C इसे ऑर्डर च ही लिखना। जे मैं इत्थे A लिख लेंदा, इत्थे B, इत्थे C फिर भी हो सकता ही, पर सानू करना की पेगा B C वैक्टर फाइंड करना पैना ते B A वैक्टर फाइंड करना पवेगा। इन्हां दी BC क्रॉस BA ये फाइंड करके ते हाफ कर देवांगे क्रॉस प्रोडक्ट। वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राईएंगल ABC। सो बेसिकली आपां BC क्रॉस BA फाइंड करना। तो जे इत्थे मैं A लिख दिंदा फिर इत्थे B, इत्थे C, फिर AB क्रॉस AC किसी भी तरीके दे नाल तिन्हां चों एक ऑर्डर सैट कर लेना है। हुण BC वैक्टर फाइंड करना है तो वो कहंदा पोजीशन वैक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ B। इहदा की मतलब है 2 - 1 इज़ 1 1 आई कैप, 3 - 2 इज़ 1 + 1 J कैप, 1 - 3 - 2 K कैप। इहदा पोजीशन वैक्टर ऑफ BA A माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ B। ये क्या ना 1 - 1 0 आई कैप, मतलब 0 आई कैप लिखने की लोड़ नहीं। 1 - 2 माइनस J कैप, 1 - 3 - 2 K कैप। नाउ आपां फाइंड करना BC क्रॉस BA। BC क्रॉस BA I J एंड K। I J K दे कंपोनेंट्स लिखांगे 1 1 - 2 माइनस I का कंपोनेंट है नहीं है 0 - 1 - 2। तो इहदा आंसर साडे कोल आ जाना है -2 - 2 -2
इन्हां दे विच 2 वारी माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाना, एक माइनस अपने कोलों लाउणा ते इत्थे माइनस दा 2 आ जाएगा। माइनस जे कैप -2 -0 प्लस के कैप -1 -0, ये आ जाना -4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सो एरिया ऑफ ट्राईएंगल ABC वो किहदे कोल आउणा, हाफ ऑफ मैगनीट्यूड, पहला मैगनीट्यूड फाइंड कर लो, BC क्रॉस BA इहदा मैगनीट्यूड फाइंड करांगे तो वो कितना आ जाना 16 + 1 + 1 √18 यानी कि 3√2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाना, BC क्रॉस BA मॉड 1/2 3√2 यानी कि 3√2/2। इनू होर सिंपलीफाई करना होवे तो रूट नू थले ले आओ, पावर 2 की 1/2 इत्थे 2 3/√2, ये भी आंसर आ सकता। ना लिख लेना स्क्वेयर यूनिट्स। सो दिस इज़ योर आंसर। वैक्टर दे सम जिहड़े आ ये ट्राईएंगल वाले काफ़ी एग्जाम्स दे विच आउंदे आ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिहड़ा कि इस बार सिलेबस दे विचों कट दिता गया। हुण कई बार स्टेटमेंट इदां दी आ जाती है, द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरलोग्राम आर गिवन बाय ए वैक्टर ते बी वैक्टर, 2 दे देणगे। एडजेसेंट साइड्स दित्तियां ने ते फाइंड द यूनिट वैक्टर विच इज़ पैरलल टू इट्स डायगनल। हुण मान लो ए एडजेसेंट साइड्स दित्तियां ए वैक्टर ते बी वैक्टर, इतों एक पैरलोग्राम बना ली, इहदा ये लॉन्गर डायगनल आ। लॉन्गर डायगनल किवें फाइंड करते हैं, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ते जिहड़ा शॉर्टर डायगनल हुंदा छोटे वाला वो किवें फाइंड करना हुंदा आपां, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर दे नाल। ठीक है, इधर वाला ए वैक्टर, इनू जे मैं सी का नाम दे देवां सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ये की होएगा लॉन्गर डायगनल। डी वैक्टर जे मैं नाम रख देवां इधर वाले का, तो वो क्या आ जाना ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर शॉर्टर डायगनल। हुण जे स्टेटमेंट च क्या, फाइंड ए यूनिट वैक्टर पैरलल टू इट्स डायगनल, मतलब सी वैक्टर दे पैरलल एक यूनिट वैक्टर फाइंड करना। स्टार्टिंग दे विच मैं दस्सिया सी कि ए वैक्टर नू ए वैक्टर दा मैगनीट्यूड इंटू यूनिट वैक्टर लिख सकते हैं। ये हुंदा यूनिट वैक्टर पैरलल टू दिस वैक्टर, पैरलल कह लो या सेम डायरैक्शन कह लो, एक ही गल हो जाती है। तो इसदा मतलब आपां यूनिट वैक्टर लभना है तो वैक्टर नू उहदे मैगनीट्यूड दे नाल डिवाइड कर दिंदे आ। इत्थे जे सी वैक्टर दे पैरलल मतलब लॉन्गर डायगनल दे पैरलल एक वैक्टर फाइंड करना है, मतलब पहला सी वैक्टर फाइंड करो ए वैक्टर ते बी वैक्टर नू प्लस करके, फिर सी वैक्टर दे पैरलल वैक्टर फाइंड करना, तो उन्होंने कहांगे यूनिट कैप सी वैक्टर ओवर सी वैक्टर मैगनीट्यूड। ये क्वेश्चनस इदा हो जाएंगे। ऑलसो फाइंड द एरिया ऑफ पैरलोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम का तो फार्मूला सानू पता ही आ। इत्थे हाफ लगा है ट्राईएंगल दे विच, पैरलोग्राम के केस दे विच हाफ नहीं लगेगा। सो वैक्टर दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो इस तरह के ही आउणगे। जे कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम दे विच वैक्टर दे विचों, तो वो इन्हां दे विचों ही आउण दे चांसिस ने। बाकी का काम आपां नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। अज लई इन्ना ही इनफ आ। सो कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं पहला भी दस्सिया है कि मैनू कॉल करके तुसीं पुछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लैक्चर।